Hello students, you really want to score very high, not just high at JEE Mains Math with a limited time left. Can you do it? So something which is confusing you, what to do, how much to do, from where to do. Sir, improve करना चाहते हैं but कहां करें, कितना करें, कैसे करें? If these are the questions which are struggling and confusing you, then the solution is here. Leave everything to the most reliable and the most relevant resource, that is the Math on Go crash course. The new crash course batch for the 70 days left for JEE Mains is starting for those who don't settle for low. If you are not happy with your math performance and you really want someone to rely on to improve your math score, believe me, we will not let your expectations down, and that's what Math on Go is famous for. The 70 days crash course is starting 14 December. Registration closes on the same date. Make sure join the link in the description box and let's get ready to get that 99 percentile in JEE Mains Math. Hello students, so in this video we guys are going to talk about how to quickly make formula sheets which can also serve as short notes. I've seen a lot of students struggling to make good formula sheets, or either they are wasting too much time in making short notes. Now math is one subject where you think that formula sheets and short notes cannot be combined, where you cannot write notes or formula sheets in one single page, and or maybe in a detailed format, right? Formula ही तो होता है sir, simple है ना? Now with an example, I'm going to tell you how to make formula sheets which will make sure आप maths, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैथ ऑन गो पे, सर देख के क्लिक हो गया, सर वी सी दिस क्वेश्चन एंड वी कैन सी व्हाट इज लाइंग इन बिटवीन, वो तरीके से नोट्स कैसे बनाने हैं जो शायद टॉप रैंकर्स के दिमाग में ऑलरेडी होता है, उन्हें बनाने की शायद जरूरत नहीं पड़ती है. मीडियोकर बच्चे बनाते हैं और वो टॉप रैंकर्स बन जाते हैं. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड स्टोर दिस वीडियो till to wherever you want to, because it is going to be a life changing video for you. Now I'll give an example and let's see it. So हम example लेते हैं AMGM inequality का. तो AMGM inequality is a very important property in maths where it is used in a lot of questions, and that is why when you make formula sheets you have to come back again and again to the same card or the paper where you have written AMGM inequality. So for example, you always write AMGM inequality. I've seen a lot of formula sheets where people will write this, right? This is AM of n numbers and this is the geometric mean of n numbers, assuming that all the numbers are positive. Now you will, some of them will also go ahead and write equality holds when the numbers are equal, that is A1 equal to A2 equal to A3. When all the numbers are equal, then it will convert to equality, and at this stage AM is equal to GM, or in fact equal to HM. I have seen a lot of formula sheets which will be maintaining this, but now I want to teach you how to take it one step further so that when the question comes in you are able to realize how things are happening. Now also start making in the same space. Let's say you have written this on a page, leave the space where you can add in future. क्या add करना था सर फ्यूचर में? इनके यूजेस, ये यूज कहाँ होते हैं? AMGM फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ यूज, इट्स अ प्रॉपर्टी इन इटसेल्फ. अब वो देखो कैसे. सो इफ वी टॉक अबाउट वेयर इट इज यूज्ड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड इन मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम्स. AOD में बहुत जगह यूज होता है, रेंज में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस व्हिच वी गाइस कैन यूज फॉर AMGM inequality in maxima minima. उसमें भी देखो हमने क्या लिखा, एक प्रॉपर्टी होती है सम इज गिवन एंड व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन. सो व्हेन सम इज गिवन, तो अगर मैं रिवाइज करा रहा हूं, जब आप नोट्स बनाएंगे यू विल डू इट मच क्विकलियर देन व्हाट आई एम डूइंग. सो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो, अगर a प्लस b प्लस c कुछ दे रखा है, कुछ ऐसा ये गिवन है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा कैसा बनेगा? ऑलवेज नोटिस LHS RHS था ना, AM greater than equal to GM. So if this is given, that means आपको RHS की क्या मिलेगी? Maximum value. So here what you will get? Max of product. So in these kind of questions you will expect, आप expect क्या कर रहे हो? इसमें आपको क्या लिखना चाहिए था? Max of product. Similarly when the RHS given, what you are expecting? Minimum of sum. तो आपसे क्वेश्चन जो बनेगा ये बनेगा. तो आपको क्या लिखना चाहिए था? इस तरीके से अपने आप के लिए रिमाइंडर्स रखने चाहिए थे. सम होगा तो मेरे से मैक्स ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाएगा, प्रोडक्ट होगा तो मिनिमम ऑफ सम पूछा जाएगा. आया मजा? इस तरीके से छोटी छोटी चीज को जब आप रिवाइज करेंगे यू विल एक्चुअली बी कवरिंग मल्टीपल क्वेश्चंस विद योर फॉर्मूला शीट्स. नाउ ओके, ये दो तो फिर भी हो सकता है आप लिखें. तीसरा देखो, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे कीप ऑन एडिंग हियर. नाउ व्हाट वी कैन डू इज व्हेन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज कांस्टेंट. सर ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कैसे कांस्टेंट होता है? देखो एग्जांपल के तौर पे हमने कहा a raised to power -6, a raised to power -2, a raised to power 3, a raised to power 5, ठीक है. और अब अगर मैं देखूं ये कुछ ऐसा दे रखा था. अब यहां पर अगर आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करते हो तो -6 -2 is 8,
3 and 5 8, तो जब इनको प्रोडक्ट करोगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू कांस्टेंट, तो एक्चुअली इट विल बिकम दैट प्रोडक्ट इज गिवन। ये कैसी सीरीज बन गई, प्रोडक्ट इज गिवन वेयर प्रोडक्ट इज नोन टू बी अ कांस्टेंट फिगर। तो ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, वापस से ऐसा जहां पर सम की मैं मिनिमम वैल्यू बता सकता हूं, सॉल्व करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ जस्ट इमेजिन with minimum and maximum you have covered how many variety of questions in just 3 lines you can recall। अभी खत्म नहीं हुआ, आओ आगे बढ़ो। क्वेश्चंस मिक्स विद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में भी एएमजीएम के क्वेश्चंस बनते हैं। सर कैसे, देखो सिंपल सा एग्जांपल अगर आप ऐड कर सकते थे यहां पर, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस 4 कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आगे चल के इक्वेशन में इफ यू सी हियर दैट टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड इन साइन ए and cos b only, right? sin a and cos b। so ये क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको नोट्स में, ये लिखना है तो जिससे आप रिकॉल कर पाए। तो इससे क्या होगा, जब आप इसमें एएमजीएम लगाओगे तो इसका एएमजीएम लगा के ये क्या बनने वाला है, देखो ये बनने क्या वाला है, साइन स्क्वायर a cos b, ठीक है। एंड लेट्स सपोजिटली वो यहां पर यही लिखा होता तो क्या हो जाता, am इज इक्वल टू gm, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, दोनों क्वांटिटीज को इक्वेट कर देना है, काम खत्म। दैट इज हाउ इन ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो इट इज यूज्ड, एएमजीएम वहां पर भी यूज हो सकता है। तो आपको जब अगेन ये कैटेगरी कैसे हुई, इसको आप कैसे लिख सकते थे, अगर मेरे को फॉर्मूला शीट में लिखूंगा सम टू प्रोडक्ट, अगर आप सम टू प्रोडक्ट जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, प्लस वहां पर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, मैक्स और मिन का, देन इट इज 100% कि आपको फिर से एएमजीएम यूज होगा। एक और एप्लीकेशन आपको जो ऐड कर सकते थे, क्वेश्चन मिक्स विद रूट्स ऑफ nth डिग्री। आप देख रहे हो इतनी डेप्थ में अगर आप करोगे, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड मैथ ऑन गो पे हम रिजल्ट क्यों प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर आर टीचर नोट्स जो हमारी टीम बनाती है और उसी हिसाब से हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, बिकॉज हमें पता है एएमजीएम एक सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ कंप्लीट एंटिटी इन इटसेल्फ। तो हमें पता है, अब देखो इफ रूट्स आर पॉजिटिव x raised to power 4 दिस ये दे रखा था, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ए एंड बी। अब इसमें क्वेश्चंस बनते हैं जो इसी तरीके से आपको घबराने के लिए दिए जाएंगे। तो देखो इसका आंसर क्या था, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया यहां पर 8, लोएस्ट क्यूब का कोएफिशिएंट माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक कैटेगरी हमेशा यहां पर ऐसी बनती है जहां पर देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है 16, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमारा जो था एएमजीएम क्या था, 8/4 होगा। 8/4 क्यों होगा, अरिथमेटिक मीन बिकॉज सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कितने रूट्स हैं, 4 रूट्स हैं, हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है ना, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक, तो ये आ गया 2। ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, 4th रूट ऑफ 16, जो 4 नंबर्स थे। अरे सर जैकपॉट लग गया। रिमाइंड, जिसने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा होगा समझ में आ जाएगा, कई बार हमें कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो हायर डिग्री इक्वेशंस में निकालनी होती है, वी कैन यूज इट बाय फाइंडिंग एएमजीएम, लुकिंग फॉर व्हेन द अरिथमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स बिकम इक्वल। 2 और 2 आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे नंबर्स बराबर हैं। दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा, सारे बराबर हो गए। ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन ओवर। नाउ दिस इज हाउ यू शुड हैव मेड नोट्स ऑफ AMGM inequality. Now you understand why if people make notes like this, they will go to explode the paper, they will beat the paper, they will beat the competition by a far margin. Start understanding in depth. तो आप आगे से जब भी नोट्स बनाते हैं तो सिर्फ ये काम पे मत रुकिए, इसके नीचे जगह बना के छोड़िए जहां पर आप जैसे जैसे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, यू कैन मेक श्योर दैट यू कैन राइट दोज पैटर्न्स, योर लर्निंग्स देयर ऑल्सो इन सम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। तो देखा जाए क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर चुके हैं तो आपको याद आता रहेगा। इट इज जस्ट दैट यू शुड बी एबल टू रिवाइज इट ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। आप हर 10-15 दिन बाद एक पीस उठा के देखा, हाँ छप गया सर, तो अगली बार जब भी आपके दिमाग में कुछ ऐसा है तो यू शुड बी एबल टू थिंक यार कहीं एएमजीएम तो नहीं लग रहा, लगा के देखें। दैट इज हाउ यू विल इंप्रूव योर जेई, नॉट जस्ट फॉर मेंस बट फॉर द एडवांस लेवल also. Start making them. Let me know in the comment section that how you love the idea of making notes, creative formula sheets, which can be clubbed with short notes also with the help of this example. God bless. Keep working hard.